ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਦ ਆਊਟਰ ਐਜ ਆਫ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਰੇਜ਼ਡ above the level of the inner edge at sharp bends of roads. This is called banking of roads. This is done to provide the necessary centripetal force to the vehicle for moving safely on sharp bends of the road. ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ? ਆਊਟਰ ਐਜ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਰ ਐਜ। ਆਊਟਰ ਐਜ, ਇਨਰ ਐਜ। ਆਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਇਨਰ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਬੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਮੋੜ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਧਰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਸੈਸਰੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਰੋਡ 'ਚ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਆ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਅਰ ਮਸਟ ਵੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ, ਆਹ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਉਸ ਬੈਂਡ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਨਾਮਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਫਿਨਾਮਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਿੱਪ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਾ ਬਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਡ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਕਿਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਬੈਂਡ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੀ ਆਰਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਉਹ ਲੈਵਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਐਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਡਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟਾਈਲਸ, ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? that is given by frictional force।
ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਆ, ਰੋਡ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਡ ਵੈਟ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਪ ਅਵੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਰਦਰ, ਅਗਰ ਆਹ ਲੈਵਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਰੋਡ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬੈਂਡ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿੱਧਰ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਟਰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਦਾ ਵੇਟ ਐਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਇਸ ਫਿਨਾਮਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰੋਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ, ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟਰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਟੂ ਮੂਵ ਇਨ ਅ ਸਰਕਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਉਹਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਨਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਈਨਰ ਸਾਈਡ ਆ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ let a car of mass m is moving on a road at the bend, the level of outer edge is raised by an angle थीटा। मान लिया एंगल थीटा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਗਲ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਆਊਟਰ ਪਾਸਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਦਰ ਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਿਸ ਬੈਂਡ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਈ ਆਰ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾ ਘੱਟ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਕਾਰ। Now various forces acting on car are, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਮ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, and it acts, ਕਿੱਧਰ ਆ ਕਰਦਾ
वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बिल्कुल नीचे ਨੂੰ जा रहे साढ़े को। सैकेंड की साढ़े को हैगा आर इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रोड। साढ़े को दो ही फोर्स एक्ट कर रही इस जगह पर, एक इहदा मास बिल्कुल डाउनवर्ड, आ जी रोड साढ़े को अप हो चुकी है, ये उपर की साढ़े को इस तरह एक्ट कर रहा वो बुका। ये साइड पे देखो तो इस तरह दिखाई दे रहा, आ लैवल थोड़ा अप साढ़े को आ चुका है साइड पर। इतने साढ़े खलोते पी है कार, तो कार उपर इस तरह नॉर्मल एक्शन बनता पाया, दैट इज एट इन दिस डायरेक्शन 90 डिग्री टू दिस लैवल बनता पाया। ये दो साढ़े को फोर्सिस एक्ट कर रही ने। हुण असी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स पढ़िया। नॉर्मल रिएक्शन R is resolved in two parts. दो हिस्से पर डिवाइड करके देख लेंगे केड़ा जी। नंबर 1 आप देखिए R, हुण देखिए सानू एंगल चाहिए इत्थे, ये बिल्कुल आप लाइन लै जाइए, वेट दे बिल्कुल अपोजिट वर्टिकली अपवर्ड्स। एक साढ़े को इधर आ जाएगी, दो डायरेक्शन आ चुकी हैं। हाँ देखो की आया साढ़े को, सॉरी ये 90 डिग्री का। देख रहे साढ़े को एक आ रहा कंपोनेंट उपर नूं, एक इधर आ रहा साढ़े को। आ एंगल कितना आएगा अगेन देखो, अगर ये एंगल इन्होंने दोनों लाइनों कितना वा 90 अपना थीटा, ये परपेंडिकुलर कौन है आ लैवल दे आर, ये परपेंडिकुलर आ लाइन। सो अगर दो लाइनों में एंगल थीटा है, उन्होंने परपेंडिकुलर में भी एंगल की रहेगा थीटा ही रहेगा। सो दिस एंगल इज थीटा। सो की देखा सी उपर वाला कंपोनेंट साढ़े को आ चुका आर कॉस थीटा, इधर वाला जाएगा आर साइन थीटा। सो एक कंपोनेंट आ गया आर कॉस थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट। It acts opposite to the weight in upward direction. And vertical, it balances the weight of car. इस वेट में बैलेंस कर रहा था, देयरफॉर की आएगा साढ़े को आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इस कंपोनेंट ने वेट में बैलेंस किया, ना कार नीचे जा रही है ना कार ऊपर जा रही है, इस जगह तक मीनस ये वेट में आ कंपोनेंट की कर रहा है बैलेंस करता पाया, ये बराबर आ गया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एक हिस्सा साढ़े को ये कंपोनेंट आ गया। सैकेंड देखिए असी दूसरा कहना है आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट एक्ट्स इनवर्ड्स किधर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ। जिहड़ा कर्व है
ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਫਰਦਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ centripetal force to car for taking a turn। ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। therefore ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ, r sin theta ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ mv² upon r। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਧਾ ਲਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, r sin theta is equal to mv² upon r। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਾਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਕੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 r cos theta ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, इधर कौन आ रहा है r sin थीटा। ऐ साइड ते की है mv² अपॉन सॉरी सेकंड अपॉन सेकंड बाय इक्वेशन 1, सेकंड sin थीटा इधर cos थीटा, mv² अपॉन r इतने डिवाइड होना सारा। चलो मैं सिंबल डाल देना की है इहदे विच वेट mg। करो सॉल्व, आर ना आर कैंसल, की रह गया इधर tan थीटा। इधर देखिए mv² r, ये इनवर्स कर दिए था, m न m कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा tan थीटा mv² अपॉन r, सॉरी v² अपॉन r जी। v² ते r जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन r जी। तो वी हैव फाउंड द एंगल ऑफ बैंकिंग। इनू इस तरह भी लिख सकते हैं असी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इस तरह ही थीटा एंगल लभ लिया भी किन्ना सानू बैंकिंग करनी पेगी रोड दी टू मूव द व्हीकल सेफली ऑन द बैंड। पर बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं सिंबल tan इनवर्स, क्योंकि घट पढ़िया होंदा ने, यह सिंबल ज़्यादा प्रैफर करते हैं। कोई गल नहीं, इस तरह याद कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन r जी। डन। हुण की कह रहे असी ये देखना भी साडे मोड़ ते किन्नी क स्पीड सानू वध तो वध चाहीदी है। की देख रहे असी इस रिलेशन में जेड़े मर्जी देखो, जिन्नी स्पीड ज़्यादा असी मोड़ कटना चाहते हैं, जिन्ना तेज साडी कार या व्हीकल जा रहे हैं, थीटा सानू उन्ना ही ज़्यादा करना, उन्नी जी ग्राउंड का लैवल आ आउटर एज का ज़्यादा करना पेगा। डन। दूसरी गल जी, ये तो कॉन्सटेंट आ आर, जिन्ना बैंड शार्प है, जिन्ना आर छोटा उन्ना tan थीटा ज़्यादा, जिन्ना आर वड्डा भी बैंड जिहड़ा शार्प नहीं है उन्ना tan थीटा घट, उन्नी सानू बैंड आउटर एज नूं वध घट रेस करना पेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। है इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान, कुछ नहीं करना, तुसी एक डायग्राम बनानी अपने कुछ कहना भी आ दो ही फोर्सिस ने, एक एम जी आ एक आर, दोनों आर दे फिर दो कंपोनेंट्स बना लेने ने। आ एंगल थीटा रहेगा क्योंकि आ नीचे एंगल थीटा, आर cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, इट विल बैलेंस वेट ये बराबर आए ना। यह चीज़ ने साढ़े कि बराबर आए ना, सेंटीमीटर फोर्स से डिवाइड करो, आर विचों निकल जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। वहाँ साਡਾ आंसर आए ना, बड़ा आसान। सो नोट कर लो।
ਸੈਕੰਡ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਬੈਂਡ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਦਿਸ weight will act vertically downward, mg ਆ वर्टिकल डायरेक्शन है। ए साइड ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਇੱਧਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ। ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰਨ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਰਡ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੋ ਖੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਝੁਕ ਜੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਡਿੰਗ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, टू हैव नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर टर्निंग। देखिए इट्स ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, a cyclist bends inwards with respect to vertical while taking turn on a sharp bend. This is called bending of cyclist. ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, same reason. This is done to provide necessary centripetal force. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖੀਏ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਾਈਕਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮ। The various forces acting on the cyclists are ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 mg is weight of cyclist acting
वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा वेट साढ़े कोल। सैकेंड कौन आ रहा साढ़े कोल? नॉर्मल एक्शन। as shown in figure। कर रहे हुण फिर की करते असीं नैक्सट स्टैप की साडा सी रिजॉल्व आर इंटू टू कंपोनेंट्स। तेनों एक्सप्लेन करने वास्ते अगेन असीं आर दे दो हिस्से कर लेने हैगे। resolving R into two components we get की सानू मिलेगा दो हिस्से साढ़े को आ चुके ने। करिए रिजॉल्व। एक ये साढ़े को आ गया, किधर डायरेक्शन आ गया साढ़े को। इधर किहड़ा कंपोनेंट आएगा? आर कॉस थीटा। इधर कौन आएगा? आर साइन थीटा। नंबर वन किहड़ा कंपोनेंट आ गया? आर कॉस थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट। It acts vertically upwards and balances the weight of cyclist। Therefore ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? R cos theta is equal to mg। ये वेट के बराबर आ गया इस जगह पे। नैक्सट सैकेंड कंपोनेंट कौन साढ़े कोल? आर साइन थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट एक्ट्स टूवर्ड्स द center of bend in road ਇਹਦਾ काम की साढ़े को? it will provide us the centripetal force। it provides the centripetal force for taking turn। की साढ़े को आर साइन थीटा सेम आ गया उस तरह ही एम वी स्केयर अपॉन आर। उस केस वहीकल फोर व्हीलर से आम बंदा जड़ा असीं फिल्मां 'ਚ ही देखते बस भी वहीकल जड़ा फोर व्हीलर वो एक साइड चुक देंगे है एक टायर इस तरह कार जा रही तो एक साइड चुक देंगे इस तरह नहीं। उत्थे सानू रोड नूं इस तरह करना पैंदा टू प्रोवाइड नैसैसरी सेंटीमीटर फोर्स। फिर रोड का लैवल चुकती है। बट टू व्हीलर्स कोई चॉइस है वो थोड़ा जिहा अपने लैवल तो बैंड हो जाता। इस तरह असीं बोर्ड लैन के थोड़ा जिहा अंदर नूं बैंड कर जाता। पर उहदे करना की होया साडे कोल? इहदे कंपोनेंट आ गए आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा ने वेट बैलेंस कर देना। आर साइन थीटा ने सानू सेंटीमीटर फोर्स देनी है। अगेन मैं दस दगा इस जगह पर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्रिक्शन का ਜਿਹੜਾ कंसैप्ट आ वो ਸਮ ਅਪ नहीं किया। सिर्फ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्रिक्शन ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾर्ट ਉਹਦਾ नहीं हैगा। पहली इक्वेशन 1 मान लो, इनू 2 मान ली असी। सेम उस तरह डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 की आएगा? आर साइन थीटा, इधर कौन आ गया? आर कॉस थीटा। यह सी एम वी स्केयर अपॉन आर एम जी। सेम आर कैंसल, टैन थीटा एम वी स्केयर अपॉन आर इनवर्स कर दिए था। एम ने एम कैंसल,
सेम रिलेशन आ गया साढ़े को, चाहे बैंकिंग ऑफ रोड से चाहे बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट हैगा, एक्सप्रैशन सेम हैगा tan थीटा इजिकल टू वी स्केयर अपॉन आर जी, या थीटा इजिकल टू tan इनवर्स वी स्केयर अपॉन आर जी। सेम साड़ी रिक्वायरमेंट आ, जिन्नी ज़्यादा स्पीड वहीकल की उन्होंने नीचे ਨੂੰ ज़्यादा झुकना पैना, जिन्ना शार्प टर्न है उन्ना ज़्यादा झुकना पैना। सो दो गल्लां ते डिपेंड करेगा ਉਹਨੂੰ किन्नी बैंडिंग करनी पैनी है सो दैट वो सेफली टर्न लै सके। सो आ दो गल्लां एक्सप्रैशन इंपॉर्टेंट ने, इन्हां दे बेस ते आर्टिकल भी आ जाता पेपर च ते न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। हुण दो सिंपल कंसैप्ट्स असीं होर कर लिए। लिफ्ट का केस आप डिस्कस करिए। लिफ्ट असीं देखते सारे उपर जाने वास्ते सानू असी कैबिन च एंटर कर जाते हैं, ऑन करते प्लग सीधा सानू उपर लै जाता ना, अप भी लै जाता वा डाउन भी लैके आता। उस दौरान असी देखना साढ़े वेट उत्ते की फर्क पैंदा हैगा। सो पहला देख लिए वेट की चीज़ हैगी आ। असी अपना वेट चैक करने वास्ते मतलब ग्राउंड ते इत्थे मशीन सानू दित्ती हुंदी है, बड़े तरीके ने भार चैक करने। एक तो ये तकड़ी दे विच बंदा बैठ जाए, दो दे तरह हिस्से ने, एक पासे भार रख दिए दूजे पासे आदमी बिठा दिए, वो तरीका। पर ज़्यादातर असीं देखते हैं डॉक्टर्स को जाइए या किते होर एक इस तरह की मशीन होंदी है, उत्ते बंदा पैर रख के खलो जाता हैगा ते सूई घुम के सानू वेट दसदी हैगी आ। हुण देखो इत्थे की गल आ, वेट कौन दस रहा? जो परसन ने उपर आ के कोई परसन खलो गया आ गया इस जगह पर, वट वुड हैपन, इट विल एग्जर्ट वेट डाउनवर्ड। तो की हो सका कि चीज़ काम करते भी आ। हुण तुसीं देखो अगर एक्सपैरीमेंट करके कई बार हाथों के स्प्रिंग खिंचण वाले स्प्रिंग होंगे आ, जो खिंचते असीं शुरू खिंच लैंदे आ, एक स्टेज आती आ साडे कोल इन्नी फोर्स नहीं रहिंदी हैगी भी इहनूं होर आपां खिंच सकीए। कोई होर साडे तो भी स्ट्रोंग बंदा आएगा ताकतवर, वो होर खिंच के लंबा कर सकता, कोई साडे तो माड़ा तो घट रखेगा। सिमिलरली जो स्प्रिंग नूं दबाना असीं ते दबाण दी लिमिट अलग अलग आ, एक स्टेज तो बाद स्प्रिंग नहीं दबदा। इट मीन सिमिलरली जो ये एक्शन लगेगा मशीन ते इट विल गिव द रिएक्शन, इन्हें उपर में एक रिएक्शन देना है। ओड स्प्रिंग जो सिस्टम उपर अप नूं वर्क काम कर रहा, दैट विल शो कि उस जगह पर कितनी टर्न आ रही है पॉइंटर दे विच, जां रीडिंग जी आ रही है अजकल डिजिटल आ रही है। फ्रॉम दैट तो रिएक्शन जड़ा दैट विल मेजर द वेट। वेट जिन्ना मर्जी होए उन्होंने नोट किने करना, वो जो रिएक्शन हो रहा उन्होंने की फर्क पै रहा मशीन च। सो ये ख्याल रखना विद द वेरीएशन इन आर, अगर आर वेरी करेगा तो जो साडा ऑब्जरवेशन आ रीडिंग आ रही है साडा वेट तो नहीं चेंज होना, बट जी इधर रीडिंग आ रही है जो उन्होंने फील करता पाया दैट वुड गैट चेंज। असी देखा किस तरह कई लोग जोड़े ने इस तरह झूला साढ़े को आता उपरों वाला नीचे, उपरों जाके नीचे आता, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। पर बहुत जो उपरों नीचे आता इस जगह पर सडनली नीचे आता उदों ऐ लगता भी असीं हवा च उड़ रहे हैं ना, सानूं हल्का। कई बंदे बहुत डर जाते हैं, कई घट डरते हैं, कई इंजॉय करते हैं, बट उन्होंने एक अलग फीलिंग आती है दैट इज़ कॉल्ड वेटलैसनैस। कुछ हद तक वह वेट उन्होंने घट फील होता क्योंकि उन्होंने अर्थ जिस कैबन च बैठा, जिस वो टोकरी च बैठा वा, उतों रिएक्शन घट मिल रहा, अर्थ उन्हें खिंचती पई आ, बट द रिएक्शन ऑफ दैट सरफेस गैट डिक्रीज। इन्हें ऐ चुक के रखना सी पर आ भी थले जाना शुरू हो गया। वो असीं देखना भी वेट जो सानू मेजर कर रही साडी मशीन वो कितना फर्क नज़र आएगा। सो देखिए केस नंबर 1 देखिए, लिफ्ट इज एट रेस्ट। काम ही बड़ा सौखा, लिफ्ट रेस्ट हैगी आ, इट मीनस जी आ मैं शो कर दी आ लिफ्ट का सरफेस आ मशीन पई है इस जगह पर, की रह गया सर बी कितना है 0, कोई यदि वेलोसिटी है नहीं, बॉडी की रेस्ट हैगी, एक्सेलरेशन कितनी लगेगी 0। व्हाट वुड हैपन,
आर इज इक्वल टू एम जी, दो ही साढ़े को है बराबर बराबर है ने, आर माइनस एम जी 0। अगर अं कह दीए भी नैट फोर्स हम कितनी है आर माइनस एम जी, बट बॉडी जा रही किते भी नहीं जा रही, सो नैट फोर्स कितनी है 0, बॉडी इज नॉट मूविंग एनीवेयर। इस तरह मर्जी कह लीए, इट शोज दैट व्हाट इज हैपनिंग। इनू इस तरह भी अगर शो करके देखिए, रेस्ट द नेट फोर्स ऑन परसन कितनी आ रही है, दोनों फोर्स जी आपस बैलेंस कर दी पे ने, कितनी आ गई साढ़े कोल एफ इजिकल टू आर माइनस एम जी। एक ही शो रहा है इट इज 0, सो आर इजिकल टू की आ रहा है एम जी आ रहा है। इस तरह देख लीए, सो जो वेट आ दिस इज शोन इन द मशीन, इट इज इक्वल टू द वेट। सो की है आर इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू weight of body. So reading in machine will show weight equal to actual weight of बॉडी। ध्यान नोट कर ला, ठीक है जी। जो बॉल लिफ्ट रैस्ट से हैगी आ, ਉਹਦਾ वेट बिल्कुल उन्ना ही आ जिन्ना असल जो हैगा, एक्चुअल वेट शो करेगी। सैकेंड केस देख लीए, लिफ्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इज गोइंग अप और डाउन at constant speed। हुण देखिए की होंदा इस केस, v 0 नहीं है, v इज कॉन्स्टेंट। सपोज करो लिफ्ट जी अप जा रही है, की क्या इस केस अगेन एफ ए कितना वा, ए इज 0, एफ एम ए दैट इज आल्सो 0, देयरफॉर आर एफ की है आर माइनस एम जी ए 0, सो आर इज कोई फर्क नहीं पिया। सो दो केस अं देख लिया, चाहे लिफ्ट रैस्ट आ ਜਾਂ कॉन्स्टेंट स्पीड उपर जा रही या नीचे आ रही है, तो वेट में कोई फर्क नहीं आएगा, वेट वुड रिमेन सेम। यानी वेट का मीनिंग जी रीडिंग शो करेगी मशीन उसका सेम रीडिंग आएगी जिन्ना एक्चुअल वेट हैगा। गल क्लीयर होगी। एपरेंट वेट इज इक्वल टू की है दो केसेस रियल वेट की देख रहे हैं असी, दोनों केसेस की आ रहा अगर जो तो अपेयर हो रहा मशीन एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट या रियल वेट, जो इस कहना दोनों बराबर दिखाई देंगे, कोई फर्क नहीं आएगा ना। बस हुण देखिए फर्क कित्थे पै रहा। थर्ड केस या केस 3 लिखना, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड in upward direction, यानी कोई छेती नहीं खींचता मैं लिफ्ट में तां कोई। नो ए इज नॉट 0, हुण एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो इट मीन जी फोर्स आ ए नॉट 0, इट मीनस एफ की है इट इज आल्सो नॉट 0, तो फिर एफ की है एफ इज इक्वल टू की है गैस की देखिए ऊपर जा रही है। हम दो चीज़ का कंपीटिशन से आर तो एम जी, होर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, पर जो ऊपर जा रही है की शो रहा सानू भी आर इज मोर एज कंपेयर टू दिस एम जी,
तो की आ रहा साढ़े कोल डन। हुण आर की है ये मान ली एफ नूं की मनी है ए द एक्सलेरेशन आ तो मास इंटू एक्सलेरेशन आ चीज़ आ गई साढ़े कोल देयरफॉर की आ रहा एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। आ दोबारा देख लो एक्सलेरेशन हुण जीरो नहीं है ਇਹਦਾ मतलब फोर्स भी जीरो नहीं रही देयर इज नैट फोर्स ऑन द बॉडी दैट इज वाई इट इज मूविंग अपवर्ड ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फोर्स के ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ आर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ एम जी ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू नैट फोर्स जी आ रही है एफ। अगर एफ की वैल्यू कितनी आ जिन्ना बॉडी का मास हम एक्सलेरेशन मल्टीप्लाई कर दिए आ चीज़ आ गई ये इधर आएगा तो की बन जाएगा इस केस आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। सो नैट वेट जिहड़ा दैट गैट्स इनक्रीज तो ਜਿਹੜੀ रीडिंग आएगी ये मशीन च ये ज़्यादा आएगी ठीक है। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਮਰ 50 किलो आ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ 60 हो गया ਜਾਂ 55 हो गया ਜਾਂ 52 हो गया समथिंग इट विल अपीयर टू बी ग्रेटर दैन एट रेस्ट। सो here apparent weight gets increased। ज़्यादा भारा लगेगा पर्सन है ना। थर्ड फोर्थ केस देखिए असी लिफ्ट इज एक्सलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हुण की हो रहा लिफ्ट के सेम आ लिफ्ट किधर जा रही है लिफ्ट नीचे ਨੂੰ जा रही है की देखांगे एक्सलेरेशन जीरो नहीं है एक्सलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर जी फोर्स आ दैट इज आल्सो नॉट इक्वल जीरो तो कितनी होएगी एफ इज इक्वल टू एम ए नैट फोर्स है आल्सो की है साढ़े कोल एफ की शो हो रहा आर कौन ज़्यादा नहीं लगता नीचे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ रहा इट अपीयर्स दैट एम जी स्ट्रोंगर दैन आर एम जी माइनस आर तो दिस इज एम ए एम जी माइनस आर। सो वेट विचों कुछ वैल्यू माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो गया इधर जाके माइनस तो क्यों होगा एपरेंट वेट जिहड़ा मशीन थानू वेट दिखाएगी दैट वुड गेट रिड्यूस्ड। गैट्स रिड्यूस्ड या डिक्रीस्ड। हुण जिहड़ा सानू वेट अपीयर होएगा होर घट जाएगा ना वेट घटे घटे दिखाई देगा हुण 50 किलो सी हुण 48 49 या 47 समथिंग विच इज़ लैसर दैन 50 वो तो घट वैल्यू आएगी अपने असली वेट नालों क्योंकि इस जगह पर थोड़ा वेट घटना शुरू हो गया। हुण एक स्पैशल केस देख लीए वन फिफ्थ केस लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ हो गया इतना रब करे ना होए बट अगर इस तरह हो जाए भी लिफ्ट के उपर जी रोप टुट जाए लिफ्ट हम बिल्कुल फ्री आ कोई आसे पासे डिगती पई आ इस तरह सिचुएशन आ तुसीं किसी चीज़ बैठे पे जे लिफ्ट डिगनी शुरू हो गई है उदों तुहाडा वेट मशीन च देखना शुरू करो भी कितना होएगा अगर कोई देखेगा तो हेयर की आ जाएगा जी की होएगा सॉरी ए इज इक्वल टू जी इज एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ये बराबर आ जाएगी एक्सलेरेशन ए वुड बिकम इक्वल टू जी फ्रीली डिगनी शुरू होगी साढ़े कोल ही देखिया असी आर की आंदा साढ़े कोल एफ इज इक्वल टू की सी
आर माइनस से एस के की नीचे आ रही है एम जी माइनस ये आया सी आर इत्थे कौन आ रहा सी एम ए आर कितना आया सी एम जी माइनस एम ए बट ए इज आल्सो की है इट इज एम जी सो एम जी माइनस एम जी सो आर इज 0 सो दिस इज स्टेज ऑफ वेटलैसनैस की चीज़ आई साडे को वेट रह ही नहीं गया कोई वो जी मशीन हुण शो करेगी वेट उत्थे रीडिंग 0 आ रही होएगी in the state of weightlessness कोई वेट इस समय शो नहीं हो रहा मशीन कहती मैं तुहाडा की वेट चैक करना मैं तो आप डिगदी पई मेरा अपना नहीं है कोई बेस नीचे ना कित्थों रिएक्शन देना उन्हें कोई रिएक्शन देने की कोई परपस नहीं है कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा दैट इज़ वाई रीडिंग इज़ 0 सो असीं सारे केस डिस्कस कर लिया लिफ्ट के विच अगर उनकी देखा अगर बॉडी जी लिफ्ट आ दैट इज़ एट रैसट जां तो रैसट होए जां एक कॉन्सटेंट स्पीड ते अप या कॉन्सटेंट स्पीड डाउन जा रही इन्होंने दोनों केसेस की आ वेट जिहड़ा इंदा मशीन जी शो करेगी दैट वुड बी इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी जे लिफ्ट अप जा रही विद एक्सलरेशन दैन वेट वुड अपीयर टू बी ग्रेटर अगर मशीन नीचे आ रही विद एक्सलरेशन मोशन एक्सलेटर मोशन तो वेट विल बी डिक्रीज बिल्कुल फाल करती पई आ तो वेट अपीयर्स टू बी 0 हुण केस सेम हैगे ने तो लास्ट साडे कोल रह गया क्रेन अगर क्रेन बारे पूछ लें सो जिस तरह असीं कीता सी हुणे पे बैंकिंग ऑफ रोड्स तो बैंडिंग ऑफ साइकलिस्ट गल इक्को ही सी सेम साडे को आ रहा केस क्रेन च की है मान लो क्रेन की कोई उपर छत हैगी आ इत्थों रोप वगैरह आई इन्हें किसी बॉडी नूं अपने ढाई किया है की कड़ी फल लग रही है एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो टेंशन इज देयर इन द स्ट्रिंग टेंशन डिवेलप हो गई एक तरह का ये एक्शन किया तो रिएक्शन मिल गया रोप नूं खिंचिया केबल नूं खिंचिया तो की होया इत्थे टेंशन इनक्रीज हो गई या क्रिएट हो चुकी है इस जगह पर सो एम जी की है वेट ऑफ बॉडी देखिए कह दिया टी की है टेंशन इन केबल ऑफ क्रेन क्रेन ने जिस उस रस्सी ना लोहे दी या दूसरी है उन्हें चुक के रखा तो केसेस किहड़े आ गए केस 1 देखिए असी बॉडी इज एट रेस्ट देखिए गया इस केस वी 0 ए भी की 0 देयर फॉर एफ की है दैट इज आल्सो 0 की शो रहा एफ की इज इक्वल टू टी माइनस एम जी अगर शो कर दिए आ चीज़ 0 है तो टी इज इक्वल टू एम जी सो टेंशन इन द केबल इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एस केबल च उन्नी ही टेंशन प्रोड्यूस होएगी जिन्ना कि इहदा वेट हैगा अगल आ गई साढ़े कोई टेंशन आ चुकी हैगी सैकेंड केस सिमिलर आ जाए साढ़े कोल केस 2 वो सेम केसेस आने बॉडी इज मूविंग अप और डाउन विद कांस्टेंट ऐसे ना स्पीड आ लाइन पूरी करना तो की है गैस केस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया या वी इज इक्वल टू 0 बट वी कांस्टेंट इट मीनस एक्सेलरेशन कितनी है 0 फिर फोर्स कितनी 0 एंड सेम अगेन टेंशन इन द केबल इज इक्वल टू वेट सो सेम केस आ गया अगर बॉडी रेस्ट है ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ ਸੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਐਂਡ ਵੇਟ ਆ ਦੇ ਆਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਸੋ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਜੀ ਆ ਜਾਣਾ
दोनों केसां 'ਚ। थर्ड केस देखिए असीं, body is lifted upwards with some acceleration. Here है A is not equal to 0. Therefore F भी की है is not equal to 0. कोई है दी value, A has some value, so F will also have some value. F is equal to MA. Now F की also F की बने असी T minus mg में क्यों ले रहा की शो कर रहा ਆਪਾਂ now body ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ it is moving upward with acceleration A ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਅਪ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ T ਸੋ T minus mg ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਦੀ MA तो T minus mg T is equal to mg plus MA ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ T is greater than mg. So tension in the cable gets increased. बहुत छेती ना ऊपर चुकांगे टेंशन ज़्यादा पै जाएगी जिस तरह मैं कहा कि तुसी एक ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਈਟ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦ ਥ੍ਰੈਡ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਐਮ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਆ ਦੈਟ ਗੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਗੈਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਗੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੁਣ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ फोर्थ केस आ गया बॉडी इज लिफ्टेड या डाउनवर्ड्स at some acceleration या with some acceleration ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆਗਾ ਅਗੇਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ weight appears to be stronger ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T F ਨੈਟ ਕੀ mg ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ T ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ma तो T कितना आ गया mg माइनस ma डन वेट नालों कुछ घट वैल्यू आ रही है वेट चो कुछ घटावांगे फिर टेंशन बराबर आ रहा है इट मीनस T की है लैस दैन mg सो नीचे लियाते समय किसी एक्सलेरेशन ते जिहड़ी टेंशन आ दैट गैट्स रिड्यूस्ड वो घट जाती हैगी सो असीं केस देख लिया बिल्कुल लिफ्ट के वर्गे हैगे ने ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਐਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਹ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਸਾਰੇ ਸੋ ਚਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇੱਕ ਸੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਰੋਡਸ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ वो तो अच्छे तरीके आएंगे अगर तुम आ कंसैप्ट ਜਿਹੜੇ अच्छी तरीके समझ आएंगे। थैंक यू क्लास।